السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار تل سماتی دنیا کی آپ بیتی ایپیسوڈ نمبر 81۔ ان پہاڑیوں کے اندر اوپر اور نیچے ہر طرف گھنے درخت تھے، اونچی گھاس تھی اور سرکنڈوں کا جنگل بھی تھا۔ ایک جگہ بارشوں کا پانی بھی جمع تھا۔ پہاڑیوں کے اندر قدرتی طور پر غار سے بنے ہوئے تھے، جن میں چھوٹی غاریں بھی تھیں اور 2-3 خاصی بڑی غاریں تھیں۔ یہ تھوڑا سا علاقہ ایسا تھا جیسے اس میں سے گزرنے کا کوئی راستہ نہ ہو، صرف تنگ سا ایک راستہ تھا جو پہاڑیوں کے اندر پہنچا دیتا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں، حمید اللہ خان، نور اللہ اور اس کے دونوں ساتھی اپنا مختصر سا سامان اور بستر اٹھا کر پہاڑیوں کے اندر چلے گئے۔ نور اللہ اور اس کے دونوں ساتھی ہماری طرح بھڑکے اور بپھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی اپنی عقل کے مطابق مشورے دے رہے تھے۔ رات کی واردات کی ساری رقم ابھی تک ہمارے پاس تھی۔ حمید اللہ نے غار میں پہنچتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ نور اللہ اور اس کے دونوں ساتھیوں کو ان کے حصے کی رقم دے دی۔ نور اللہ اور اس کے ایک ساتھی نے، جو ہمارے ساتھ رہتا تھا، اپنے حصے کی رقم واپس کر دی۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، اس لیے وہ اتنی رقم اپنے پاس رکھ کر کیا کریں گے۔ انہوں نے تھوڑی تھوڑی اپنے پاس رکھی۔ حمید اللہ نے ان کی واپس کی ہوئی رقم میں سے کچھ اور پیسے اس آدمی کو دے دیے جسے دوسرے گاؤں سے بلایا گیا تھا۔ اس آدمی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کے حصے میں اتنی رقم آئے گی۔ جب کبھی تم لوگوں کو میری ضرورت پڑے تو اشارہ کر دینا، اس نے کہا۔ اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ اس نے ہم نے رخصت کر دیا۔ اب ہمارے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ شموں کے سسرال والے گاؤں میں پولیس جو کارروائی کر رہی تھی اس کا پتہ چلانا تھا۔ نور اللہ کے متعلق ڈر تھا کہ اسے اس گاؤں کا کوئی آدمی پہچانتا نہ ہو۔ ہمارا دوسرا ساتھی ذرا دور کے علاقے کا رہنے والا تھا، اسے بھی کوئی نہیں جانتا پہچانتا تھا۔ اس نے خود ہی کہا کہ وہ اس گاؤں جا کر دیکھ لے گا اور معلوم بھی کر لے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسے اس شخص پر بھروسہ تھا، وہ خاصا چالاک اور ہوشیار آدمی تھا۔ وہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ میں اور حمید اللہ خان پیچھے رہ گئے۔ ہم دونوں کی جذباتی حالت ایک جیسی تھی۔ ہم اس سوال پر بحث کرنے لگے کہ جگموہن کو کہاں ڈھونڈا جائے۔ ایک تو وہ علاقہ تھا جہاں جگموہن مجھے ملا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ وہ اسی علاقے میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، لیکن اس نے جو رکا پیچھے چھوڑا تھا اس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ مجھ پر وار کرے گا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہمارے علاقے میں موجود ہے، اور وہ دلیر ہی نہیں تھا، عقل مند بھی تھا۔ وہ ہماری اس کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا کہ ہم قانونی طور پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ ہمارے 3 افراد قتل ہو گئے تھے اور ہم تھانے نہیں جا سکتے تھے۔ تھانے جانے سے پولیس پہلی کارروائی یہ کرتی کہ مجھے اور حمید اللہ کو گرفتار کرتی، اور تھانے دار میرے سر کی قیمت 10,000 روپیہ انگریزوں سے وصول کر لیتا۔ جگموہن اگر پکڑا بھی جاتا تو اس کے خلاف قتل کا جرم ثابت نہیں ہو سکتا تھا، اس کا رکا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں، حمید اللہ یا نور اللہ یا ہم تینوں اکٹھے اس علاقے میں نکل جاتے جہاں ہمیں جگموہن ملا تھا اور اسے ڈھونڈتے پھرتے۔ اس طرح بھی ہمارے پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ غور کرو سکندر، حمید اللہ خان نے کہا، تم جب سروس میں تھے تو تم نے جگموہن کے گروہ کو گرفتار کرایا تھا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ یہ شخص کہاں کا رہنے والا تھا، اور تم نے اس کے گھر کی تلاشی بھی لی ہوگی۔ وہ پولیس ہیڈ کوارٹر والے شہر سے 15-16 میل دور
ایک قصبے کا رہنے والا ہے، میں نے کہا۔ لیکن تلاشی میں نے نہیں لی تھی، سلطان نے لی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سلطان نے واپس آ کر مجھے بتایا تھا کہ جگموہن کی 2 بہنیں بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ ہمارا کام ہو گیا۔ حمید اللہ نے میرے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہا، قصبہ تو جانتے ہو نا، جگموہن کا گھر معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اگلی واردات اس کے گھر کریں گے، جو نقدی ہاتھ لگی وہ لے آئیں گے۔ اس کی دونوں بہنوں کو نہیں تو ایک کو ضرور ساتھ لے آئیں گے اور اس کے گھر کو آگ لگا کر آئیں گے۔ میں نے حمید اللہ کی اس بات پر غور کیا تو مجھے بھی یہ اچھی لگی۔ وہاں تک پہنچنا خطرے سے خالی نہیں تھا، وہ قصبہ مین لائن پر تھا۔ انتقام لینے کے لیے ہم خطرہ مول لے سکتے تھے۔ میں نے حمید اللہ اور نور اللہ کے ساتھ اس تجویز پر عمل کرنے پر سوچنا شروع کر دیا۔ میں اس وقت نیم پاگل تھا، میری عقل پر بھڑکے ہوئے جذبات کا قبضہ تھا۔ مجھے یہ صورت بڑی اچھی لگ رہی تھی کہ جگموہن کے گھر پر حملہ کر کے اس کے خاندان کا اور مکان کا وہی حال کیا جائے جو حمید اللہ نے بتایا تھا، لیکن یہ میری فطرت کے خلاف تھا۔ یہ ہندو کی فطرت تھی جس نے مجھ سے انتقام لینے کی بجائے ایک بوڑھے آدمی اور ایک عورت کو قتل کر ڈالا۔ میں کسی بے گناہ کو سزا دینے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس وقت میں اسی پر غور کرنے لگا۔ سورج غروب ہونے کے کچھ دیر بعد ہمارا وہ آدمی واپس آ گیا جو شموں کے سسرال یہ دیکھنے گیا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے اس ساتھی کا نام اقبال تھا اور ہم اسے بالا کہا کرتے تھے۔ اس نے یہ خبر سنا کر ہمیں حیران کر دیا کہ شموں کا خاوند رات کی واردات میں قتل ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو بالے؟ میں نے اس کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے پوچھا۔ تم ہی نے تو یہ واردات کی ہے، اسے کس نے قتل کیا؟ یہ نور اللہ تمہارے پاس بیٹھا ہے، بالے نے کہا، اس سے پوچھ لو۔ یہ اور میں اس کمرے میں گئے تھے جس میں مال گھڑے میں رکھا ہوا تھا۔ وہ پگلا لڑکا اندر آیا تھا اور کچھ نہ کچھ بکتا رہا تھا۔ ہم نے مال اٹھایا، پھر نور اللہ نے دیوار سے بندوق اتاری اور ہم نکل آئے۔ رات کو بھی تمہیں یہی سنایا تھا اور ہمارا تیسرا یار اندر گیا ہی نہیں تھا، پھر ہمارے ساتھ باہر نکل آیا تھا۔ ہاں سکندر، نور اللہ نے کہا، اسے مارنے کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ تم نے بھی کہا تھا کہ کسی کو قتل نہیں کرنا، وہاں قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مجھے کچھ اور شک ہونے لگا۔ میں اپنے ساتھیوں پر پورا اعتبار کرتا تھا، وہ ٹھیک کہتے تھے کہ کسی کو قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک بات بتاؤ، میں نے نور اللہ اور بالے سے پوچھا، جب تم لوگ وہاں سے نکلے اس وقت شموں کہاں تھی؟ وہ اسی اگلے کمرے میں تھی، بالے نے جواب دیا، اور اس کا خاوند وہ بھی شاید اندر ہی تھا، بالے نے جواب دیا۔ ہاں سکندر، نور اللہ نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ اندر ہی تھا۔ پھر یہ شموں کا کام ہے، میں نے کہا۔ حمید بھائی، تم جانتے ہو کہ شموں نے ایک بار تمہیں اور کوئی 10 بار مجھے کہا تھا کہ باپ بیٹے کو قتل کرنا ہے۔ اگر باپ کو قتل نہ کرنا ہوا تو بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ میں نے اسے ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ میں نے یہ بات اس لیے اسے نہیں کہی تھی کہ کہہ دی تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں پھنسا دے یا کسی اور طرح سے دھوکہ دے جائے۔ اس نے جب دیکھا کہ ہمارا آدمی اپنا کام کر کے جا رہے ہیں اور انہوں نے اس کا کام نہیں کیا تو اس نے موقع غنیمت جان کر اپنے خاوند کو مار ڈالا۔ بالے، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ اسے کس طرح قتل کیا گیا؟ ہاں، بالے نے جواب دیا، میں نے یہ بھی پتہ کرایا ہے۔ اس کے سر پر 2 چوٹیں بتائی گئی تھیں اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہاتھوں سے یا کپڑے یا رسی سے اس کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ اگر ہم اسے قتل کرتے تو چاقو یا خنجر مارتے، ہمارے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ پہلے سر پر چوٹیں مارتے پھر گلا گھونٹتے۔ اس طریقہ قتل سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ ہمارے کسی آدمی کا کام نہیں تھا۔ کیوں بالے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ شموں کے متعلق تو تمہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا،
कहीं ऐसा तो नहीं कि कत्ल का शक उस पर किया जा रहा हो। ऐसा हुआ था, बाले ने जवाब दिया, लेकिन उसके ससुर ने ऐसा बयान दिया था जिससे शम्मो पर जो शक था वो साफ हो गया। तुम ये तमाम खबरें बड़ी जल्दी ले आए हो, मैंने बाले से कहा। पुलिस का जो हवालदार थानेदार के साथ आया था वो अपना यार निकला, बाले ने जवाब दिया। उसने सारी बातें बताई हैं। शम्मो के ससुर ने यह बयान दिया कि उसके बेटे ने डाकुओं को बहुत गालियां दी थी और वो उसे वारदात वाले कमरे में ले गए थे। थानेदार ने शम्मो के ससुर को बताया कि उसके बेटे को डाकू कत्ल कर गए हैं। इस तरह शम्मो को उस शक से रिहाई मिल गई। थानेदार ने किसी और को मुश्तबा बिठाया है, मैंने पूछा। उसने इधर उधर से कुछ आदमियों को बुलवा भेजा है, बाले ने जवाब दिया। लेकिन बड़े मज़े की बात यह हो रही है कि शम्मो के ससुर ने अपने किसी दुश्मन पर शक लिखवाया है कि ये वारदात उसे कंगाल करने के लिए उसके दुश्मनों ने की है। मैंने सुना है कि थानेदार की तवज्जो उस तरफ हो रही है। मैं बाले से सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि पुलिस की तवज्जो उस गांव की तरफ तो नहीं जिसमें हम रहते थे। ऐसे लगता था जैसे हम महफूज हैं। फिर भी हमें चौकन्ना रहना था और ये खबर भी लेते रहना था कि पुलिस का रुख किस तरफ है। 5-6 रोज़ गुजर गए। हमें शम्मो के ससुराल वाले गांव से इत्तलाएं मिलती रहीं। पुलिस उसी रात थाने चली गई थी। थाने से पता चला कि थानेदार ने कई लोगों को मुश्तबा बिठा रखा था। उसमें 2-3 आदमी भी थे जिन पर शम्मो के ससुराल ने शक किया था। अभी तक शक हमारे गांव की तरफ नहीं हुआ था। शम्मो महफूज थी। उसे एक बार भी थाने नहीं बुलाया गया। वो अब गवाह थी। हमारे खाने का इंतज़ाम गांव वाले करते थे। हमारे पास अब खासी रकम आ गई थी। उसमें से हमने गांव वालों का हिस्सा भी निकाला और उन्हें दे दिया था और उन्हें कहा था कि अब उन्हें हिस्सा मिलता रहेगा। मैं और हमीदुल्ला खान रात को गांव में जाया करते थे। उन दिनों चांदनी पूरे चांद की थी, इसलिए पहाड़ी जगह से गांव तक रात को आना जाना आसान था। रास्ता इतना तंग और इतना दुश्वार था कि अंधेरी रात में से उससे गुजरना खतरनाक था। पांव फिसल जाने की सूरत में आदमी पथरीली चट्टान से लढ़कता हुआ नीचे जाता। एक जगह नीचे पानी जमा था और दलदल भी थी। डकैती की वारदात के 5-6 रोज बाद की एक रात थी। उस रात हबस बढ़ गया था। गार के अंदर घुटन महसूस होती थी। मैंने ये भी महसूस किया कि ये घुटन मौसम के हबस की वजह से नहीं, बल्कि इस घुटन का ताल्लुक जज्बात से है। ख्वाजा साहब और शहनाज की जब याद आती थी तो गम से दिल तो बोझल होता ही था। तलखियाँ कांटों की तरह चुभती और दहकते अंगारों की तरह जलाती थी। ये इंतकाम के जज्बे की तलखी थी जिसकी तस्कीन इंतकाम लेकर ही हो सकती थी, मगर यह ख्याल बहुत ही तलख था कि जिससे इंतकाम लेना है वो ना जाने कहाँ था। उस रात घुटन उस वक्त उस किस्म की थी जैसे किसी के हाथों ने मेरा गला घूंट रखा हो। दिल पर कुछ ऐसा बोझ भी था जिसमें अज़तराब भी था और ऐसा खौफ भी जैसे कोई वाक़या पेश आने वाला हो या आज रात कोई और हादसा होगा। कभी ऐसा होता है कि हादसे से पहले ही दिल पर घबराहट सी तारी हो जाती है और बेचैनी सी पैदा होने लगती है। बाज़ लोग तो कह भी देते हैं कि कुछ ऐसे लगता है जैसे कुछ होने वाला है। कुछ ऐसी ही कैफियत मुझ पर भी तारी थी। हमीद भाई, मैंने कहा, ज़रा बाहर निकल चलें, बड़ी घुटन है। तुम हबस महसूस नहीं कर रहे? कर तो रहा हूँ, हमीदुल्ला खान ने कहा, लेकिन इतना नहीं। ज़रा हौसले से काम लो सिकंदर, तुम तो कभी कभी हाथ पांव छोड़ बैठते हो। सिकंदर भाई, नूरुल्लाह ने कहा, तुम तो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की बातें किया करते थे, इतनी जल्दी हिम्मत हार बैठे। जाए जहन्नम में तुम्हारा हिंदुस्तान, मैंने गुस्से से कहा। मैं जब तक जगमोहन की शह रग अपने हाथों से नहीं काटूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। नवाबजादा साहब, नूरुल्लाह ने हमीदुल्ला खान से कहा, इसे बाहर ले जाओ।
इसका गुस्सा ठीक नहीं। अपने गुस्से से तो मैं खुद भी परेशान हो गया था, मुझे कभी गुस्सा नहीं आया था। हमीदुल्लाह खान भी शायद मेरे गुस्से से परेशान था। रात खासी गुजर गई थी। हमें उस वक़्त सोया होना चाहिए था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। हमीदुल्लाह खान मेरी खातर उठा और हम दोनों नूरुल्लाह को गार में अकेला छोड़कर बाहर आ गए। हम खाली हाथ गांव में नहीं जाया करते थे। मेरे पास बंदूक और हमीदुल्लाह खान के पास रिवाल्वर होता था। उस रात भी हथियार हमारे पास ही थे। गांव तक चलोगे हमीद भाई? सब सोए हुए होंगे, उसने कहा। इस वक्त जाकर क्या करोगे? हमीद भाई, मैंने कहा, तुम तो जानते हो कि मुझ में एक हिस्स फालतू है। आज यह हिस्स कुछ ज़्यादा ही बेचैन हो रही है। ना जाने मैं क्यों महसूस कर रहा हूँ कि गांव का चक्कर लगा लेना चाहिए। कोई ख़तरा महसूस कर रहे हो? लगता तो ऐसे ही है, मैंने जवाब दिया। हमारा ये ठिकाना कब तक छुपा रहेगा? एक ना एक दिन तो छापा पड़ना ही है। जगमोहन तो मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ उतर गया है। ओहो, वो छापा ज़रूर पड़वाएगा, हमीदुल्लाह खान ने कहा। तुम्हारा वजूद नकद 10,000 रुपया है सिकंदर, और वो हिंदू है। नहीं, मैंने कहा, उसे 10,000 रुपये के साथ दिलचस्पी होती तो जब यहाँ आया था तो अपने साथियों की बजाय पुलिस को साथ लाता। वो तुम्हें कत्ल करके अपना इंतकाम लेना चाहता है, हमीदुल्लाह खान ने कहा। फिर वो तुम्हारी लाश उठा कर ले जाएगा और 10,000 रुपया वसूल कर लेगा। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें करते ऊंचाई के रास्ते से गांव की तरफ बढ़ते गए। वो बरसात का मौसम था, इसलिए फिजा में गर्दो गुबार नहीं था। उससे चांदनी बहुत ही शिफाफ थी। चांद हमारे पीछे और हम घने दरख्तों में थे। एक टीकरी का ढलानी सिरा गांव के अंदर जाता था। हम उस टीकरी पर पहुंच गए। गांव हमारे कदमों में था। पीछे हो जाओ, हमीदुल्लाह खान ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे कर दिया और सरगोशी में बोला, दरख्त के पीछे हो जाओ और गांव में देखो। मैंने देखा कि शफाफ चांदनी में मुझे 4 आदमी दिखाई दिए। उस गांव के जो थोड़े से मकान थे, ये तकरीबन नीम दायरे में थे। आगे उसी टीकरी की ढलान आ जाती थी जिस पर हम खड़े थे। हम एक दरख्त की ओट में बैठ गए। ये चारों आदमी देहाती नहीं लगते थे। उनके हाथों में कोई हथियार नज़र नहीं आता था। मैंने नूरुल्लाह के साथ कुतुबुद्दीन के गांव से आते जगमोहन और उसके 2 साथियों को देखा था। उनके कपड़े डैल डोल और कद ऐसे ही थे। वो सीधे उस मकान के दरवाजे पर जा रुके जिसमें हम रहते थे। हमें ऊपर से उस मकान का सहन दिखाई दे रहा था। वहाँ 3 मवेशी बंधे हुए थे। ये जगमोहन है, मैंने कहा। शिकार खुद ही जाल में आ गया है। वही हुआ तो दूर से गोली मार देंगे, हमीदुल्लाह खान ने कहा। नहीं हमीद भाई, मैंने कहा, गोली ना चलाना, मैं उसे जिंदा पकड़ूंगा। फिर देखना कि मैं उसे किस तरह तड़पा तड़पा कर मारता हूँ। अभी यकीन नहीं था कि यह जगमोहन है, लगता वही था। अगर पुलिस के आदमी होते तो वर्दी में होते और बाकायदा छापा मारते। हमीदुल्लाह खान और मुझ जैसे खतरनाक और मफरूर मुजरमों को पकड़ने के लिए पुलिस का छापा शब खून की मानद हुआ करता था। ये पुलिस नहीं थी और ये CID के आदमी भी नहीं थे। हम दोनों नीचे उतरने लगे। उधर देखा, जगमोहन मकान के अंदर गया और उसके पीछे उसके 2 साथी गए। एक बाहर खड़ा रहा। हम उतरते गए। टीकरी की ढलान सीधी नहीं थी। उस टीकरी के आगे एक छोटी टीकरी थी। एक से उतर कर दूसरे पर चढ़ना और उससे उतरना होता था। हम बड़ी टीकरी से उतर रहे थे कि जो आदमी बाहर खड़ा था उसने हमें देख लिया। हम उतरे और अगली टीकरी पर चढ़ने लगे। जगमोहन, रात के सन्नाटे में हमें आवाज़ सुनाई दी, फौरन निकलो, ये बाहर वाले आदमी की आवाज़ होगी। उसने बुलंद आवाज़ से जगमोहन को नहीं पुकारा था। ये आम आवाज़ थी, जैसे 2-3 गज दूर खड़े आदमी को बुलाया जाता है। चूंकि वहाँ सन्नाटा था, इसलिए ये आवाज़ उस तरह सुनाई दी जैसे हमारे करीब खड़े किसी आदमी ने हमारे साथ बात की हो। हम दौड़कर अगली टिकरी पर चढ़े। बाहर वाला आदमी गायब हो चुका था। अंदर से 2 आदमी दौड़ते निकले और उस मकान की
नुक्कड़ से ही मुड़कर पीछे चले गए। फासला कम रह गया था, इतना कम कि चेहरा पहचाना जाता था। आखिर में जो आदमी मकान से बाहर आया वो जगमोहन था। उसकी दिलेरी ने मुझे हैरान कर दिया और वो दरवाजे में ज़रा सा रुका, दाएं बाएं देखा और दूसरी तरफ दौड़ा। हमीदुल्लाह खान ने उस पर फायर किया, लेकिन इतने फासले से रिवाल्वर की गोली निशाने पर नहीं लग सकती थी। गोली ना चलाओ हमीद, मैंने गुस्से से कहा। मेरा शिकार अब कहीं नहीं जा सकता, मुझे जिंदा पकड़ने दो इसे। अब यकीन हो गया था कि वह जगमोहन है। वो मकानों के पीछे चला गया। मैं और हमीदुल्लाह खान तेज़ दौड़े। गोली जो हमीदुल्लाह खान ने चलाई थी उससे गांव वाले जाग उठे होंगे, लेकिन उनमें से कोई भी बाहर ना आया। उन्हें आना भी नहीं चाहिए था। जहां गोलियां चलती थी वहां तो कहीं दुबक जाने या भाग जाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। मकानों के पीछे कब्रिस्तान था, दरख्त बहुत थे और उसके गिर्द खड्ड थे, जिनमें से बाज़ गहरे और बाज़ कम गहरे, और घास ज़्यादा ऊंची नहीं थी। जगमोहन के साथी जिस तरफ गए थे उधर खेतियां थीं जिनमें सावन की फसल खड़ी थी। वो तो छुप छुप कर भाग सकते थे, लेकिन जगमोहन जिस तरफ गया था वहाँ फसल वाला एक भी खेत नहीं था। हम दोनों कब्रिस्तान तक चले गए और रुक कर कान खड़े कर लिए। थोड़ी देर बाद अचानक हमारे दाएं से दौड़ते कदमों की आवाज़ें उठी और कुछ दूर जाकर खामोश हो गईं। जगमोहन, मैंने ललकार कर कहा, सामने आ जाओ, गोली नहीं चलाऊंगा। कोई जवाब ना मिला। गोली नहीं मारूंगा जगमोहन, मैंने फिर उसे ललकारा। सामने आओ, चाकू से लड़ो, खंजर से लड़ो। उधर खामोशी रही। हमें अंदाज़ा था कि कदमों की आवाज़ कहाँ खामोश हुई थी। हमीदुल्लाह खान बाएं को और मैं दाएं को चला गया। हमारे कदमों की आहट हमारे शिकार के कानों तक पहुंच रही थी। वो चालाक और ज़हीन आदमी था और फुर्तीला भी था। कुछ देर बाद हमें सरसराहट सुनाई दी। जगमोहन रींग रहा था या पाँव पर बैठा सिरक रहा था। फौरन बाद तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। आगे घास ऊंची और झाड़ियाँ घनी थी। हम दोनों तेजी से आगे बढ़े। आगे सरकंडों का जंगल आ जाता था। मैं उस तरफ चला गया ताकि वह सरकंडों के अंदर ना चला जाए। जो ही नज़र आए उस पर फायर कर देना सिकंदर, हमीदुल्लाह खान ने दूर से कहा। नहीं नहीं, मैंने उसे बुलंद आवाज़ से जवाब दिया, मैं उस काफिर को जिंदा पकड़ूंगा। मैं सरकंडों की तरफ हो गया था। उनसे आगे टीकरियाँ थी। मैंने हमीदुल्लाह खान को गोली चलाने से रोका तो था, लेकिन मैं जानता था कि जगमोहन उसे नज़र आया तो हमीदुल्लाह उसे छोड़ेगा नहीं, गोली चला देगा। वो फिर दौड़ा। हमीदुल्लाह खान ने एक और गोली फायर कर दी। मुझे यकीन था कि उसने सीमत का अंदाज़ा करके गोली चलाई थी। जगमोहन उसे नज़र नहीं आ सकता था। वो थोड़ी दूर तक दौड़ा। मुझे यकीन हो गया कि वो छोटी टीकरियों के दरमियान चला गया है। हमीद भाई, मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, और आगे चले जाओ, इसे बाहर ना निकलने देना। मैं दुआ कर रहा था कि जगमोहन हमीदुल्लाह खान को नज़र ना आए। मुझे हमीदुल्लाह के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़कर एक टीकरी पर चढ़ गया। आगे बड़ी टीकरी थी। चांदनी बहुत साफ थी। चांद सर पर आया हुआ था। तकरीबन 50 कदम दूर मुझे जगमोहन दिखाई दिया। वह झुका हुआ आगे जा रहा था। जगमोहन, रुक जाओ, मैंने उसे ललकारा, तुम मुझे नज़र आ रहे हो, यहाँ से नहीं निकल सकोगे। वो दौड़ पड़ा और दूसरी तरफ मुड़ गया। मैं दौड़ता हुआ उसके पीछे गया। वो उन टीकरियों से निकल नहीं सकता था। जगमोहन को यकीनन अंदाज़ा था कि मैं कहाँ हूँ और हमीदुल्लाह खान कहाँ है। मैं उसे कह तो रहा था कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, लेकिन उसे मुझ पर एतबार नहीं आया था। वो मरने के लिए अपने आप को मेरे हवाले क्यों करता? उसे उम्मीद थी कि वो निकल जाएगा। वो इसी कोशिश में था, लेकिन वो टीकरियों और चट्टानों के फंदे में जा रहा था। वो इसी कोशिश में था, लेकिन वो टीकरियों और चट्टानों के फंदे में जा रहा था। उधर से वो उन पहाड़ियों में जा रहा था जहां हम रहते थे। वो उस जगह से वाकिफ़ नहीं था। मैं भी यही चाहता था कि वो उधर ही जाए। हमीदुल्लाह खान और मैं ऐसी पोजीशन में थे कि उसे उसी तरफ ले जा रहे थे। वो उधर जाता रहा और हम दोनों उसकी सरसराहट और उसके कदमों की आहट पर चलते गए।
چلتے چلتے وہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں بہت بڑے بڑے پتھر بکھرے ہوئے تھے، اور یہ تھوڑی سی جگہ تھی جہاں چھوٹے بڑے پتھر تھے، اور اس جگہ کے ارد گرد سرکنڈوں جیسی گھاس تھی۔ حمید اللہ خان کو معلوم نہیں کہاں تھا